Professor Jaideep Mandal sir, Honorable Head of the Department of Mathematics and Sciences, Honorable Professor Ashwini Kumar Garg sir, and Honorable dignitaries and respected teachers present over here and my friends. A very good morning to all of you. As you all aware of that, we have gathered here to celebrate National Science Day, and you all have already seen the significance of this day, the history and the legacy of Sir C.V. Raman, an acclaimed Nobel laureate. Now I wish to take you all on some different journey. A journey of timeless scientific spirit embedded in India's roots, rich Vedic heritage. Science, we all knew, it is the basic foundation relationship between the cause and the effect. What is science? Science is the relationship between the cause and the effect. We are in such a prestigious educational institute where we talk who talks about Indian knowledge system, which means Bharatiya Gyan Parampara, which is truly historically rich and culturally dynamic. But very interestingly today, let's talk about Bharatiya Vigyan Parampara. Long before modern laboratories technology, our sages have discovered and established rich scientific principles. Have you ever heard of mathematics as a part of religious text? वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक गणित, जिसका मूल जो है वो वेद है, आयुर्वेद, इट इज अ ग्लोबली एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर्ड मेडिकल साइंस, धर्म ग्रंथ का हिस्सा हो, मेडिकल साइंस धर्म ग्रंथ का हिस्सा हो, गणित धर्म ग्रंथ का हिस्सा हो, ऐसा दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। भारत के अलावा ये पहला उदाहरण है। ये दुनिया में कहीं भी नहीं है। बाकी जगह विज्ञान का धर्म से संघर्ष है, हमारे यहाँ विज्ञान धर्म ग्रंथ से उद्भूत है। ये फंडामेंटल डिफरेंस है हमारे और उनके बीच में। ये in the sacred verses of Rig Veda, we find the most remarkable cosmological inquiries in the history of mankind. It tells about the origin of the universe and the origin of creation. The ancient text of Surya Siddhanta contains detailed astronomical calculations describing planetary motions, solar and lunar eclipse, and even the planet Earth is flat or spherically round. Our Hindu scriptures largely describe it. Before any of these Western discoveries, हम इसे भूगोल कहते थे और universe was referred as Brahmand, cosmic egg. These texts like Surya Siddhanta, Vishnu Puran, and Srimad Bhagavad Mahapuran have explained it long before them. क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में भी जो विष्णु जी के अवतार हैं उनमें से एक अवतार 12 अवतार हैं, उसमें जो उन्होंने अर्थ को अपने सूंड में उठाया हुआ है वो स्फेरिकल शेप में है। तो इट वाज सेड लॉन्ग बिफोर द डिस्कवरीज ऑफ वेस्टर्न साइंटिस्ट एंड ऑल। सो आई बिलीव दिस इज नॉट माइथोलॉजी, दैट वी शुड कॉल इट प्राउड हिस्ट्री। एक बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण ओडिशा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर में मिलता है, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये मंदिर सूर्यदेव के विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसमें इसकी अनूठी विशेषता जो दुनिया में कहीं नहीं है, इसमें 12 जोड़े पहिए हैं, व्हील्स, और 7 घोड़े थे। तो जो 12 जोड़े पहिए हैं वे वर्ष के 12 महीनों को दर्शाते हैं, उनके प्रतीक हैं। और ये जो 7 घोड़े हैं ये सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक माने जाते हैं। यह अपनी सटीक समय, सूर्य की दिशा, किरणों की मदद से वैज्ञानिक सूर्य घड़ी के रूप में विश्व प्रसिद्ध कीर्तिमान है। इसी तरह जैसे हमारे त्योहार कॉस्मोलॉजिकल सेलेशियल कैलकुलेशंस पर बेस्ड हैं, जो सटीक पंचांग के अनुसार डिसाइड होते हैं, बहुत दशकों पहले से ही प्रचलित है। जैसे महाकुंभ, you all have seen in 2024, the year before that, occurring every 12 years, is the science-proven precise alignment of Jupiter, Sun and Moon, which maximizes beneficial electromagnetic fields on Earth and which also reinforces spiritual powers. अब जैसे क्या आपने कभी सोचा है कि संडे के बाद मंडे ही क्यों आता है और मंडे के बाद ट्यूसडे ही क्यों आता है? मतलब why this alignment? Why are the days not arranged another way? तो इसका रीजन भी वैदिक ज्योतिष शास्त्र में है, जो होरा निकाला जाता है। जो ज्योतिष शास्त्र में होरा करके एक शब्द है वो निकाला जाता है। होरा का अर्थ ये है
जैसे प्रथम रे अगर सूर्य है तो 24 घंटे के बाद अगला होरा जो होगा वो चंद्रमा का होगा, और चंद्रमा के 24 घंटे के बाद अगला होरा जो होगा वो मंगल का होगा। तो यह ज्ञान हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी मिलता है, और हमारे ही एक धर्म ग्रंथ में, यानी 18 पुराणों में से एक श्री वामन पुराण के 14वें अध्याय के एक श्लोक से, एंड एज माई सेल्फ कमिंग फ्रॉम अ कल्चर ब्राह्मण फैमिली, आई एम श्योर कहीं ना कहीं आपने भी पंडित जी को पूजा कराते टाइम नवग्रह शांति का एक मंत्र सुना होगा या देखा होगा या कभी आपने भी पढ़ा होगा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसितो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतुवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इसमें क्या है? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भानु यानी सूर्य सन, शशि मून, भूमि सुतो यानी मंगल मार्स, द सन ऑफ अर्थ, बुधश वेडनेसडे, गुरु थर्सडे, च शुक्र फ्राइडे, शनि सैटरडे, एंड राहु केतु संडे एज अ होल। सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। तो ये जो मंत्र ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, ये जो नवग्रह शांति का मंत्र है, ये भी आप देख सकते हैं कि अलाइनमेंट ऑफ द डेज ऑफ द वीक कैसे हमारे धर्म ग्रंथ में मिलता है। इसी श्लोक में हमें सप्ताह के दिनों का ग्रहों के अनुसार सीक्वेंस देखने को मिलता है, क्योंकि भारत में धर्म और विज्ञान अलग नहीं है, धर्म और विज्ञान एक ही उद्घोष से उद्भूत है। इसी प्रकार चाहे आर्यभट्ट की शून्य की खोज हो या फिर ब्रह्मगुप्त का गणित शास्त्र में अलजेब्रिक ऑपरेशंस को निकालना, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। और इसलिए कहा भी गया है, वन यूनिवर्स एंड सिंगल एंटिटी इज एटम दैट इज शोन इन अहम ब्रह्मास्मि, एंड द कंप्लीशन ऑफ टोटलिटी का एक श्लोक बड़ा ही प्रचलित, which can be understood by this श्लोक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये जो पूर्णता का श्लोक है, दिस इज एज अ होल कंप्लीशन ऑफ द यूनिवर्स इज सीन इन दिस श्लोक। इसका अर्थ एक और तरीके से मैथमेटिक्स के रिलेशन एंड फंक्शन, इस रिलेशन एंड फंक्शन के एग्जांपल के रूप में भी देखा जा सकता है। अब कैसे देखा जा सकता है, देखिए, ओम पूर्णमदः, इस पूर्ण से उस पूर्ण की उत्पत्ति हुई है, और यह भी पूर्ण है और वह भी पूर्ण है, और जब पूर्ण प्लस पूर्ण मिलते हैं तो पूर्ण ही शेष बचता है। तो शायद मैं उतनी गहराई से आपको ना बता पाऊं, लेकिन मेरा ये मानना है और सुझाव भी है कि एक बार आप इसका अर्थ जरूर देखें और जानने का प्रयास करें कि मैथमेटिक्स का इंटरप्रिटेशन इस श्लोक के द्वारा कैसे किया जा सकता है। I can keep going like this with 100 and 1000 more examples. And lastly, I just want to say, from ancient physical sciences and yoga sutras of Patanjali to the father of surgery Shushruta in medical sciences, and from having our own atomic journey to now Chandrayaan 3, we have an entire legacy, not just in sciences, but in every possible direction. अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि गर्व कीजिए अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा पर और अपनी भारतीय विज्ञान परंपरा पर, हमारी धर्म संस्कृति और सभ्यता पर, बिकॉज साइंस इज नॉट जस्ट इन